Hello everyone, welcome back to the Evolving Journals. I'm your host Amit Tripathi and I have my co-host with me, Mr. Ayush Kumar Jha. Today's episode is very special because we will be speaking to someone who has achieved something which many aspirants dream of, especially when you are an HR graduate. So he has recently been selected as Executive Trainee HR at NTPC, which is India's one of the most prestigious public sector organization. Today, we are going to uncover his preparations, strategies, challenges, mindset, and what it actually takes to crack such a competitive opportunity. So please join me in welcoming Mr. Harshit Kuse. Harshit, congratulations once again and welcome to the Evolving Journals. थैंक यू सो मच अमित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर शो। जो कहते हैं रात लंबी जरूर होती है मगर सुबह को रोकने की ताकत किसी में नहीं। आप एक वक्त आएगा जो आपको सब मिल जाएगा, वो भी इज्जत के साथ। इस कहावत को मैंने अपने इस दोस्त के द्वारा सही साबित होते हुए देखा है। टू बी ऑनेस्ट, he had a little poor luck, I would say, in placements, but today he stands tall in his place. So जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे कि कैसे ये लड़का मजबूती से खड़ा रहा और आज देखिए कहाँ पे है। So over to you, Amit, and once again welcome you, Kose, to our show, and we are pleased to have you. थैंक यू Ayush, thank you so much. Thanks a lot, Kose. Yeah. So I guess we should start. So let's start from the beginning. Can you take us back to your educational journey and what led you to pursue MBA in HR? So as I'm from Bhopal, Madhya Pradesh, I have completed my school education from Bhopal itself, and then I completed my graduation in arts from Bhopal only. And after that, I cleared CAT and took admission into IMBHU. And as you mentioned, what motivated me to pursue my career in PSU. So basically, my father is an additional engineer at BHL Bhopal. So from starting only, I wanted to get into PSU, basically any PSU, and my preference was very limited, that to Maharatna PSU. And so yes, from my starting days in the MBA, I was adamant that I would be working in an PSU only. I was not inclined towards working at any private organization or other sectors. So yeah, this was only the motivation for me to pursue a career in the PSU sector. So, Kose, as you mentioned, you cleared CAT and went for MBA with us at FMS BHU. So, when did you take admission? At that time itself, you had the motivation to go for PSU, or earlier it was not that much extreme? कि पहले से ही आपको जाना था या बाद में आके उस? नहीं, मैंने जैसे मेंशन किया कि पहले से ही मेरे को जाना था, क्योंकि मेरे पापा ही बीएचएल में हैं भोपाल में, तो मैंने देखा है वो लाइफस्टाइल, वो मैं उससे यूज्ड टू हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए मतलब जब से मैंने एडमिशन लिया था एमबीए में, एडमिशन लेने का मेरा कारण ही वही था कि मेरे को पीएसयू में जाना है। और बेसिकली पहले नेट के थ्रू बहुत सारी पीएसयूज लेती थी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को, तो पहले मैंने नेट की प्रिपरेशन किया, उसको क्लियर किया। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि नहीं, अपनी अपनी सीवीटीज भी लेती है पीएसयू, फिर उसके लिए प्रिपरेशन किया, फिर मल्टीपल पीएसयू क्लियर किया। तो यही था मेरा कि नहीं, मेरे को जाना है तो पीएसयू में और कहीं नहीं जा रहा मैं। बस यही था मेरा मोटिवेशन। तो खुशी झलक रही है आपके चेहरे पे। Harshit, can you please list the PSU exams that you have cleared so far? So I have basically cleared SGN ETHR exam, then HPCL HRRL exam, HPCL exam, then NTPGCL exam, NTPC exam, and one more is the Airport Authority of India exam. But in AI, I missed the final merit list by 2 marks, so I won't count that into my milestone achievement. But yeah, these were a few exams which I cleared. So it's basically a huge list. आपने बताया कि इन जीके के साथ साथ आपके एचआर डोमेन के जो सब्जेक्ट्स थे, उनमें से कौन-कौन से सब्जेक्ट्स को आप ज्यादा क्रूशियल मानते हो कोई भी एग्जाम या एचआर स्पेसिफिक एग्जाम क्रैक करने के लिए? तो सी एचआर में क्या है कि एचआर में मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जनरल मैनेजमेंट भी थोड़ा बहुत आ जाता है और 2-3 और सब्जेक्ट्स जो आ जाते हैं। तो मैंने पहले तो फोकस किया कि मैं बेसिक एचआरएम जितना है वो खत्म कर लूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं और वहीं से सारे केसेस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते भी हैं। तो मैंने बेसिक एचआरएम पहले खत्म किया, उसके बाद फिर मैं बड़ा इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ओर। तो आईआर भी एक मतलब अच्छा खासा चंक ऑफ द सिलेबस कवर करता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो एचआर एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मैंने फिर आईआर खत्म किया, उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट था ओबी खत्म करना, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर खत्म करने के बाद एक्चुअली क्या है कि ओबी अपने आप में बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है वो। तो पूरा कवर करने की बजाय मैंने उस पर ये फोकस किया कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं, मेजर एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने पहले तो वो खत्म किया, उसके बाद फिर मेरे पास जैसे जैसे टाइम रहता था मैं थोड़ा बहुत ओबी देख लेता था। फिर उसके बाद ओबी खत्म करने के बाद मेरा लास्ट था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। तो ये वाला जो पार्ट था वो मैंने लास्ट में रखा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा भी है और इजी भी है, आपकी समझ में भी जल्दी आ जाएगा और ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की अपनी जरूरत नहीं रहती है। तो ये मेरा एक फ्लो ऑफ स्टडी था कि मैंने पहले एचआरएम बेसिक कवर किया, फिर आईआर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेबर लॉज रहते हैं। तो लेबर लॉज का ऐसा है कि आप उसको एक साथ लेके नहीं बैठ सकते हो कि नहीं मैं ये पूरा खत्म कर लूंगा फिर आखिर में लेबर लॉज एक साथ पढ़ूंगा, नहीं, क्योंकि वो बहुत वास्ट भी है, उसमें सेक्शन वाइज आपको पढ़ना पड़ता है, तो वो बहुत बोरिंग टाइप का हो जाता है, तो आप कर भी नहीं पाओगे वो। तो बेसिकली ये है कि आप डेली उसको आधा घंटा 1 घंटा दो, थोड़ा बहुत करते रहो, तो वो क्या बैक ऑफ द माइंड आपके स्टोर रहता है कि हाँ चलो मैंने पढ़ा था, ये मेरे को याद है, मैंने डेली इसको पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो वो हो जाता है फिर लेबर लॉज भी। तो ये मेरा फ्लो ऑफ स्टडी था। तो कुछ यू आर डेफिनेटली अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट, इतनी सारी एग्जाम निकाल लिए आपने।
तो यस, यस, यस। इस मतलब आपको क्या लगता है कि अभी जो यंग एस्पिरेंट्स आएँगे, व्हाट इज़ द कॉमन मिस्टेक्स दे डू? व्हिच यू मतलब अभी ड्यू कोर्स ऑफ जर्नी में ज़रूर किए होंगे 1-2 बार। हुँ, आपको क्या लगता हुँ। है बेसिक कोर्स ऑफ मिस्टेक्स जो कर देते हैं जनरली एस्पिरेंट्स जिन्हें वो अवॉइड कर सकते हैं? तो आपका इस पे क्या टेक रहेगा? जी, मिस्टेक्स तो देखो मैंने भी की अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, तो पहली मिस्टेक तो यही है कि सिलेबस को अगर आप नहीं देख रहे हैं किसी भी पीएससी के, तो फिर ये समझ लीजिए 60% 70% रेस आप वहीं पे लूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वहीं पे आप पीछे हो जा रहे हैं। क्योंकि सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे बोला कि कोल इंडिया में मेरा नहीं होने का कारण ये भी था कि मैंने सिलेबस, ऑल्दो मैंने पूरा सिलेबस निकाला, ये किया, लेकिन मैंने उसको अच्छे से गो थ्रू नहीं किया या मैंने देखा नहीं। उसमें मैं सिर्फ़ एचआर वाले पार्ट पे ही फ़ोकस रहा, मैंने नहीं देखा कि अरे 50% ऑफ द सब्जेक्ट अदर डोमेन से भी है। मतलब 50% ऑफ द पेपर आपका एचआर का था और 50% ऑफ द पेपर आपका अदर सब्जेक्ट्स का था। तो वो 50% मैंने देखा ही नहीं, मैंने उसको ज़्यादा प्रिपरेशन की ही नहीं। तो वो मेरे को, जैसे मैंने बताया, वो जा आगे जाके मेरे को थोड़ा भारी पड़ा। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर आगे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले यही बोलूँगा कि पहले तो आप सब्जेक्ट को गो थ्रू कीजिए, उसको अच्छे से समझिए, एनालाइज़ करिए और फिर अपनी प्रिपरेशन को आपके अकॉर्डिंग जैसा भी है डिज़ाइन कर लीजिए। फिर सेकंड आई वुड से कि रिगरस स्टडी के बजाय जस्ट बुक्स के पेजेस पढ़ने के बजाय आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। जैसे पीवाईक्यूज़ पहले लगा लीजिए या फिर जो जो भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, पहले उसको आप गो थ्रू करिए कि भई कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, कैसे क्वेश्चन्स फ्रेम हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि 30% अगर जैसे आप सीबीटी देंगे, तो 30% क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आपको आंसर आपको पता भी नहीं होगा वो चीज़ और आपको आंसर वहाँ पे दिख जाएगा। क्योंकि ये बेसिक बेसिक होता है, हर एग्ज़ाम में होता है सीबीटी खासकर एमबीए एचआर की फील्ड में तो। एंड पीवाईक्यूज़ के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने पहले तो आप जैसे कोई बुक रेफ़र कर रहे हैं, तो अगर बुक रेफ़र कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि उसमें पहले तो आप अंडरलाइन, जो बहुत लोग क्या करते हैं उसको हाइलाइट कर देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं हाइलाइट नहीं करता था, मैं बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, या फिर लाइन थी, उनको अपने वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिख लेता था। ऐसे करके मैंने आज के टाइम पे मेरे पास 3 फुल कॉपीज़ मेरी खुद की वो है, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और मतलब मेरी शुरू से आदत थी कि मैं लिख-लिख के मैं करता था, याद करता था या पढ़ता था। तो जी। ये भी कर सकते हैं आप कि अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, क्योंकि उसको क्या है कि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले प्रिपेयर करने में आपको बहुत आसानी रहती है वो, कि आप क्योंकि आपने रिविज़न्स खुद ने होते हैं। क्योंकि आपने खुद ने लिखा हुआ रहता है वो, और आपको जल्दी रिकॉल होता है, तो ज़्यादा उसमें फिर एंड मोमेंट में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 3-4 कुछ टिप्स हैं। एंड उसके अलावा तो मैं बोलूँगा कि देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज़्यादा प्रेशर मत लो, जितना फ्री माइंड रहेगा ना, उतने ज़्यादा अच्छा आप स्कोर और परफ़ॉर्म कर पाएँगे एग्ज़ाम में। और इधर-उधर की नॉइज़ जो रहती है, उससे तो आप दूर ही रहो। किसी इसके पर्सपेक्टिव सुनना, उसके पर्सपेक्टिव सुनना, जो नेगेटिव बातें रहती है, उससे थोड़ा दूर रहो। आप अपनी प्रिपरेशन पे फ़ोकस करो। सेल्फ डाउट्स होंगे, नो डाउट, सेल्फ डाउट एक पार्ट ऑफ जर्नी है। अगर आपको सेल्फ डाउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, है क्योंकि बिल्कुल, कि बिल्कुल। बेसिकली जब ये बताइए कि आप मतलब व्हाट कीप यू मोटिवेटेड थ्रू दिस जर्नी? क्योंकि तैयारी तो एक दिन की नहीं रहती है, तो लॉन्ग स्टेप ऑफ हुँ, प्रोसेस रहेगा। तो कैसे आप मोटिवेटेड थे और व्हाट वर द हुँ। स्टेप्स मतलब आप कुछ सैक्रिफाइसेस भी ऐसा बता सकते हैं जिससे लोग मोटिवेट रहे कि क्या डिमांड किया इस कंप्लीट सेट ऑफ थिंग्स में? अ, सी अ, मोटिवेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, तो देखिए क्या था कि मेरे फ्रेंड्स भी और मेरे घर वाले भी बहुत, मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि उनकी इच्छा थी कि मैं अभी जो मेरे पास जॉब या अपॉर्च्युनिटी आ रही है, मैं उसको ग्रैब कर लूँ, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे कोई भी सेक्टर में हो। लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मेरे को प्राइवेट में नहीं जाना है, मेरे को बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना है। तो वो क्या था, मैंने वो सारी अपॉर्च्युनिटी जो मेरे हाथ में थी, जो मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकता था, उसको कैपिटलाइज़ कर सकता था, वो मैंने लेट गो कर दी कि भई नहीं, मेरे को नहीं जाना है उस सेक्टर में, तो नहीं जाना है। तो एक तो वो मेरे अंदर खुद का जब आप एक डिसीज़न इतना बड़ा ले लेते हैं कि जब आपके पास एक आपके पास अपॉर्च्युनिटी और आप उसको लेट गो कर देते हो उस चीज़ के लिए जो अभी आपके पास नहीं है, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, मैंने वो एक अपॉर्च्युनिटी या जो भी आपके पास चीज़ थी आपने लेट गो की है, इस चीज़ के लिए कि आप कुछ अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, तो वो यू नो अ, एक अंदर से ही आ जाता है कि नहीं, मेरे को ये करना है, किसी भी हालत में करना है। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि एमबीए परस्यू करने का मेरा सोल रीज़न यही था कि मैं पीएसयू में जाना चाह रहा हूँ। तो रिगार्डिंग डिमांड्स एंड सैक्रिफाइस, तो डिमांड्स एंड सैक्रिफाइस सबका अपना अलग-अलग होता है। मेरा अ, अलग था कोई, जैसे मैं बताऊँ तो मेरा एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है। वो बीएचयू में ही था, तो बीएचयू से आके वो भोपाल में पोस्टेड है। अब वो जुलाई में ही जून में ही आ गया था, मई में ही आ गया था मेरे ख्याल से तो। और तब से लेके अभी तक मतलब जनवरी 26 तक वो उसकी एक कंप्लेंट रहती है कि तू मिलने नहीं आता या तूने मेरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैंने उस टाइम जी। कुछ बोलता नहीं था उसको कि मैं यार क्या बोलूँ उसको, क्योंकि मैं देखो, वो बंदा एक अच्छे ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहा है, वो मतलब वो उसकी लाइफ़ जी रहा है, उसने अचीव कर लिया जो वो चाहता था। लेकिन आपने आपने अचीव किया है कि नहीं, और आप कितना सैक्रिफाइस कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं भी यही करता कि यार उसने बुलाया, मैं चले जाता हूँ, थोड़ा आ जाता हूँ उसके साथ घूम करके, तो वो क्या फ्लो टूट जाता है, वो माइंडसेट फिर आपका चेंज हो जाता है कि चिल, बेसिकली आप चिल मोड में आ जाते हैं। तो वो मैंने थोड़ा अवॉइड किया। मैंने ये था कि नहीं, अभी मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लेता हूँ, अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद तो फिर मेरे पास टाइम ही टाइम है, जब बोलेंगे तब चले जाएँ मिलने चले जाएँगे। जब फिर तो ये है।
मेरे लिए बड़ी बातें थी, किसी के लिए छोटी हो सकती है, सबका अपना-अपना अलग पर्सपेक्टिव है। तो हाँ, बेशक, यही बेशक। सब है। मैं तो आपके इस मैं आपकी बात से एग्री हूँ। कोई भी एक्सपीरियंस को कम से कम हाँ, सोशल इंटरेक्शन कुछ दिन के लिए हटाना पड़ता है हाँ, और खास करके सोशल मीडिया, वो काफ़ी हाँ, सारी चीज़ें उससे वही। होता है। ये 2 चीज़ तो काफ़ी वैसे जैसा आपने अपने दोस्तों का बताया, तो एनी एक्सेप्शनल सपोर्ट दैट यू लाइक टू मेंशन किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जो आप अपना क्रेडिट जिन्हें देना चाहेंगे फॉर दिस योर अचीवमेंट? देखिए, सबसे पहले तो मेरी फैमिली है, क्योंकि मतलब इतने टफ टाइम में जो उन्होंने सपोर्ट दिया है, उन्होंने मेरे पे फेथ रखा है, ट्रस्ट रखा है, तो उसका तो कोई दूसरा रिप्लेसमेंट या कोई सानी नहीं है। क्योंकि आप एक आप एमबीए करके आ रहे हैं एक जगह से, एक और बेसिकली मेरे साथ क्या था कि जब एसआईपी थी, तो मेरी कॉलेज में आप लोगों को पता है कि कॉलेज में मेरी और एक और बंदे की एसआईपी सबसे ज़्यादा थी, मतलब जो स्टाइपेंड अमाउंट था सबसे ज़्यादा था। तो उससे क्या हुआ जी, था मैं कि घर में दर्शकों को 1 मिनट बोले दर्शकों को एसआईपी मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट समर प्लेसमेंट, समर इंटर्नशिप दैट वी गो थ्रू इन एमबीए। तो कंटिन्यू कोर्स एसआईपी। हाँ, तो एसआईपी में क्या हुआ था कि जो हमारा इंटर्नशिप या स्टाइपेंड अमाउंट था, वो कॉलेज में सबसे ज़्यादा ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि घर में भी एक एक्सपेक्टेशन बन गई कि यार इतना एसआईपी मतलब वो मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रही है, तो इसकी जो जॉब लगेगी वो भी बहुत अच्छी लगेगी, मतलब अच्छी जगह लगेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जब मैं आया वहाँ से बीएचयू से वापस आया भोपाल, तो थोड़ा मेरे मन में भी ये था यार बिना प्लेसमेंट के जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं मतलब थोड़ा अंदर मन में दुःख रहता है, सौरो रहता है। अब मैं घर पे आया तो ऑल्दो मम्मी-पापा ने तो ऐसा कुछ शो नहीं किया, उनके चेहरे पे वो लोग अच्छे चिल मूड में थे, लेकिन उनके मन में भी था कि यार बच्चे का लगा नहीं है, कहीं न कहीं उसने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिला जो वो चाहता था। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा मेरे पे वो भी नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत बीच-बीच में कभी-कभी बोलते थे कि कहीं जॉब ये कर ले, वो कर ले। लेकिन मेरे डिसीज़न में उन्होंने जो मेरा था कि मेरे को नहीं पीएससी में जाना है, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया एंड बाकी तो मतलब ये था कि समझो जो भी मेरे 6-7 महीने थे, उन्होंने हर टाइम मुझसे पूछते थे कि कैसी चल रही प्रिपरेशन, क्या है, कुछ और चाहिए? सपोर्ट जो था, आपका एक फ्रेंडली सपोर्ट जो रहता है, विदाउट प्रेशराइजिंग यू, तो वो मेरे को मिलता रहा फैमिली से एंड मतलब मेरे दोस्त लोग भी जो इंटरनली थे हाँ, मेरे दोस्त थोड़ा लोग भी बहुत थे तो डेफिनिटली प्रेशर रहेगा ही, सीइंग योर पीयर्स लैंडिंग अप इन कॉर्पोरेट्स तो वो तो थोड़ा हाँ, बहुत तो इंटरनली रहेगा। वही। मेन ये है ना कि अच्छा देखिए, क्या होता है कि एक 100 लोगों के ग्रुप में अगर आप कुछ चुनिंदा या फिर आप ऐसे रहते हो कि आपका नहीं हुआ है और सबका हो गया, तो वो आप खुद ही उस ग्रुप से कटे-कटे रहने लगते हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नहीं अच्छा लगता कि आप उनसे जाके इंटरैक्ट करो, आप चाहे कितने भी आपके क्लोज़ फ्रेंड हो या कुछ भी हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे उन लोगों के साथ। क्योंकि बेशक, बेशक। हैविंग अ जॉब इज़ द बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब आप उस स्टेज में हैं कि जॉब इज़ द अ, मेन ट्रेज़र ओनली यू हैव सोल विद यू। थिंग हाँ, एग्ज़ैक्टली ओनली सोल थिंग दैट वी कैन डू इन अ स्टूडेंट हाँ, लाइफ एक्सपीरियंस। या हाँ, तो बेसिकली आपने 25-26 साल जितना भी अभी तक किया है, पढ़ाई-लिखाई की है आपने, स्कूल एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वही चीज़ आपके पास नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, तो फिर कैसे मतलब आप एक जेल अप कर पाओगे अपने ग्रुप में? तो ये मैंने अपनी तरफ से बताया ये, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग भी और आप लोग भी थे कि आप लोगों का कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहा, प्रॉपर मोटिवेशन देते रहे वो लोग कि नहीं यू विल क्लियर करो आप, प्रिपरेशन करो ऐसा। तो हाँ, थोड़ा अपने ऊपर भी फेथ था कि नहीं ठीक है हो जाएगा। तो यही 2 ग्रुप मैं बोलूँगा, एक तो मेरी फैमिली और एक मेरे फ्रेंड्स बीएचयू के, जिन्होंने कांस्टेंट सपोर्ट, मोटिवेशन और गाइडेंस कहीं न कहीं मुझे दिया है। तो मेरी जो जर्नी थी वो थोड़ी मेरे लिए ईज़ी बनी ईज़ी हो थी। गई। हाँ, सो कुछ वन लास्ट क्वेश्चन कि जब आपका पहला रिजल्ट आया, तो 4-5 एग्ज़ाम थे, लेकिन जब पहला रिजल्ट हाँ। आया, व्हेन यू गॉट योर फर्स्ट रिजल्ट, व्हाट वाज़ योर रिएक्शन एंड योर फैमिली रिएक्शन ऑन दैट डे? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। तो पहले तो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप चेक किया, क्योंकि मेरा वो रूटीन था कि मैं जब भी उठूँ, जब भी मोबाइल मेरे हाथ में, मैं टेलीग्राम ग्रुप चेक करता था कि कोई नई पीएसयू की नोटिफ़िकेशन आई है क्या? कोई एडवर्टाइज़मेंट आया है क्या? किसी का रिज़ल्ट आया है क्या? तो मैं वो चेक करता था। तो एक हमारा जो ग्रुप था एचआर कम्युनिटी का, उसमें पहले आया कि एनटीपीसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है और उस बंदे ने अपना जो उसका कॉल लेटर या ऑफर लेटर था, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा। मैं बोला यार ये क्या हो गया, एनटीपीसी का आ गया, मैंने अभी तो 9 बजे मोबाइल देखा था, मेल चेक किया था, मेरे पास तो नहीं आया। तो फिर मैंने तुरंत वो टेलीग्राम छोड़ के फिर मैंने जीमेल अपना लॉगिन किया और मेरे सामने जो रिफ्रेश किया मैंने पहले तो जीमेल, और फिर जैसे ही मैंने जीमेल खोला, मेरे सामने पहले वही था, कांग्रेचुलेशंस। मैंने पहला वर्ड पढ़ा कांग्रेचुलेशन, फिर मैंने मेल भी नहीं पढ़ा, मैंने कुछ खोला भी नहीं, वो बस एनटीपीसी का वो जो डोमेन नेम था वो और कांग्रेचुलेशन नीचे लिखा हुआ था। बिना मेल पढ़े मैंने घर पे फ़ोन लगाया, ट्रेन में ही अपने पापा-मम्मी को वीडियो कॉल किया और थोड़ा बहुत पहले तो नॉर्मल बात की, फिर मैंने बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है एनटीपीसी में ऐसा। तो पापा तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे एकदम, मतलब थोड़े उनके अंदाज़ में वो बोलने लगे, थोड़े नाचने-गाने लगे, ऐसा-वैसा। फिर उन्होंने सबको बुलाया, मम्मी, बहन और 1-2 हमारे ऊपर रिलेटिव भी रहते हैं, उनको भी बुलाया, सबको बताया ऐसा-ऐसा हुआ कि इसका हो गया एनटीपीसी में ऐसा। तो वो पता है, ऑल्दो मैं उनके साथ नहीं था, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस में नहीं गिन कर पाया, लेकिन जब देखा उनके चेहरे पे खुशी देखी ऐसा-वैसा, देखिए पापा लोग क्या है थोड़े, जी। आप लोग समझेंगे कि हम हम लोग मिडिल बॉयज़ क्लास हैं तो के थोड़ा लिए हम लोग बिल्कुल, 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 वो दिन बहुत ही बड़ा दिन हो जाता है माता-पिता हाँ, के लिए क्योंकि उन पे एक वही। एक बच्चा सेट कर जाता है मीन्स इट्स अ ग्रेट डे फॉर देम। इट कांट हाँ, इट्स द डे डज़न्ट मैच राइट, विद एनी अदर राइट, पर्सन। राइट।
तो क्या अब पापा लोग तो इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मम्मी लोग तो नहीं कर पाती है थोड़ा। तो मम्मी थोड़ा खुशी के मारे रोने लगी, थोड़ा ऐसा-वैसा बोलने लगी। तो वो जब मैं बात कर रहा था ना उनसे, तो वो जो 7 महीने का जो टाइम फ्रेम था मेरा, जो फेज़ था। प्रिपरेशन जर्नी थी, हुँ, वो आप मानोगे नहीं, वो पूरे मेरे आँखों के सामने वापस आ रही थी। मतलब फ्लैशबैक में जा रहा था मैं अच्छा रियल टाइम में। एग्ज़ैक्टली हाँ, मैंने होता है। ना जाने कितने मैंने ट्रैवल किया, जगह-जगह सिटी घूमा, मैं एग्ज़ाम देने के लिए घूमा, फिर इंटरव्यू के लिए घूमा, डीवी के लिए गया। तो वो था थोड़ा मेरे लिए बहुत, मैं वो नहीं भूल सकता, वो वाला तो मोमेंट नहीं भूल सकता मैं। हाँ, बेसिकली इतने सारे सैक्रिफाइस और इतना लर्निंग के बाद हाँ, आप इस जगह पे पहुँचे, इसके लिए बहुत सारी बधाई वही। आपको वन्स अगेन। थैंक यू सो मच, Again, थैंक यू सो मच। congratulations Jose. It's pleasure to थैंक यू। have you on our stage. एंड यस, कहते हैं ना कि पेशेंस और प्रेयर्स से आपकी किस्मत में जो है सब मिल जाता है। तो आज कोसे जहाँ है इट्स ऑल ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, टू सम एक्सटेंट हिज लक एंड टू सम एक्सटेंट द पेशेंस एंड प्रेयर्स दैट ऑल was on his part of his journey. So thanks a lot, Kose. We will be connecting थैंक यू, in future to guide the coming MBA graduates. So थैंक यू thanks सो a मच, lot, Kose. Wish you luck for your future. और याद ओके, रखिएगा हमें। ओके। और बिल्कुल, बिल्कुल यार, आप लोग को कैसे भूल सकते हैं। थैंक यू, till then, wishing you luck with थैंक that. यू, थैंक यू, And थैंक यू सो so in future also, if we need help, we will have Kose back, श्योर, and I'm श्योर, pretty much sure श्योर, that श्योर। he will be available every time for us या, for guiding the एनी juniors. टाइम, एनी टाइम। And one more thing I would like to add, ये एग्जाम ये सब के साथ अच्छे क्रिकेट प्लेयर भी हैं। मेरी टीम की तरफ से खेलते थे एज ए या, स्पिन ये बॉलर। मेरे कैप्टन थे। मैं इनको कप्तान बोलता था प्यार से। तो बहुत बहुत खुशी लगती है आपको हमारे स्टेज पे आके। धन्यवाद, मिलते हैं। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड थैंक नाइट। थैंक्स अ बाय, लॉट बाय। कोसे।